Good morning, dear students. Now we have discussed till 1929. Now we are on the next movement, that is on the civil disobedience movement. It was launched by Mahatma Gandhi in 1930. So in detail, now we have to be read. Purn Swaraj. In 1929 session, under the leadership of Jawaharlal Nehru, they announced Purn Swaraj means complete independence. गांधी जी told them, you have to fought for. इसके लिए तुम्हें क्या होगा, लड़ना पड़ेगा. In 1930, गांधी जी declared that he would lead a march to break the salt law. क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ बनाया, सॉल्ट लॉ. इस पे टैक्स लगेगा. इसकी मोनोपोली किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडरलाइन दिस लाइन, द स्टेट हैड ए monopoly. The state means here the Britisher, because the government is under the control of Britain. So the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Monopoly का meaning earlier I told you, सिंगल अधिकार की एक ही पर्सन का राइट, उन्हीं गवर्नमेंट के पर्सन का राइट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी और सेलिंग में भी. महात्मा गांधी along with other nationalists respond that it was sinful to tax salt since it is a essential item of our food. क्योंकि नमक तो रिच पुअर everyone has to be required because this is an essential item of our food. So गांधी जी opposed it. So they started the salt march, or we can say Dandi march. Why it has known to be a Dandi? Because where they have to be reached, the name of the place is Dandi. It is a coastal area where they have to collect the salt and make their own salt. You can see in the picture. The salt march related to general desire of freedom to specific grievances shared by everybody and thus did not divide the rich and the poor. तो सब लोगों के लिए सेम डिमांड के लिए फाइट हो रही थी. अब रिच और पुअर का कोई डिफरेंस नहीं था. यू कैन सी द पिक्चर. ठीक है. इन दिस वे गांधी जी हैज टुक अ salt and make a salt with the help of boiling it. Gandhiji and his followers marched over 240 miles from Sabarmati Ashram to coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore. ठीक है. सी शोर के आसपास आपने देखा ना, नेचुरल सॉल्ट मिलता है, क्योंकि हमारा सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर. सो व्हेन दे बॉयल दैट वाटर, दैट डेफिनेटली दे विल गेट द नेचुरल सॉल्ट. तो हाउ मेनी डेज दे वॉक? दे वॉक फॉर 10 days, 10 miles a day. ठीक है. तो 10 miles a day when they have to walk, they just have to take the rest on different villages and they deliver their speeches and everyone has came to listen to Mahatma Gandhi. So you have seen, because their ashram is in Sabarmati, they started the march from Sabarmati and they reached at Dandi. Next page. Peasants, tribals and women participated in large number. This is given in the contribution of the women and tribals in the group. I will explain you later on. A business federation published a pamphlet on the salt issue. ये businessmen थे, उन्होंने एक pamphlet बताया salt issue को लेते हुए. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful सत्याग्रह. गांधी जी के मेन वेपन क्या थे? That is ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. तो ये सत्याग्रह कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ब्रिटेन वालों ने क्या किया, ब्रूटल एक्शन, मतलब बुरी तरह से मारना शुरू किया. थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, कईयों को जेल भेज दिया. द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections in the provincial legislature in 1937. Now what was the result? अब यहाँ पे इरविन एक्ट के बारे में दे हैव नॉट एक्सप्लेन इन दैट. ये 1931 में हुआ था. फिर 35 में इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, कि दे हैव गिवन अस द राइट फॉर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, कि हम अपने एरिया में फ्रीली इलेक्शंस कर सकते हैं. ठीक है. फ्रीली हम उस पर रूल्ड ओवर कर सकते हैं. तो इलेक्शंस हुए 1937 में. तो रिजल्ट क्या रहा, 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए. उसमें से 7 प्रोविंसेस की सीट्स किसके पास आई हैं, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस. सो दिस वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट. इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years, द कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस. अब किसका रूल था कांग्रेस का, प्रोविंसेस के ऊपर, छोटे छोटे एरियाज जो थे. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट.
ठीक है, अब हमारी स्टोरी कहाँ पे पहुँच गई है, 1939 पे। एंड यू नो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ब्रोक आउट हुई थी, 1939 से, और कब तक चली थी बेटा, 1945 तक। सो लेट अस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टाइम पीरियड नाउ। क्रिटिकल ऑफ हिटलर। अब हिटलर कहाँ से था, जर्मनी से था, पूरा उसकी मोनोपोली थी, एंड ही वॉज वेरी क्रूअल टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी के लिए हिटलर को कोई पसंद नहीं करता था। आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे द लाइफ ऑफ हिटलर। कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। इस टाइम पे क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी की फाइट हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एलाइज और अलाइड मेंबर्स की, तो हिटलर को कहीं विन ना कर जाए, दे आर रेडी टू सपोर्ट टू द ब्रिटिशर्स। बट इन रिटर्न दे वॉन्टेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। लेकिन फिर भी क्या डिमांड कर रहे थे हमारे लीडर्स कि हमें इंडिपेंडेंस दे दोगे अपने वॉर के बाद। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। ब्रिटिश ये एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज वी हैव सीन इन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। सो दिस टाइम वी आर वेरी रिजिड फॉर दैट कि वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस। द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। अब जितने कांग्रेस मिनिस्टर्स उन सब ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। ये वीर लखनायक जी का है, ये ट्राइबल ग्रुप से लीडर थी, इनको मैं हैंड आउट किया था। दे हैव ऑल्सो गिवन ए लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द 1942. You can underline this. This is a new term, provincial autonomy. Capacity of the provinces to make relatively independent decisions while remaining within the फेडरेशन। मतलब रहे तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे स्टेट्स अपने कुछ डिसीजंस खुद ले लेती हैं, तो उस टाइम पे किसको ऑटोनॉमी मिल गई थी, प्रोविंसेस की। और प्रोविंसेस किसके कंट्रोल में हो गई थी, कांग्रेस की। सो दिस वाज द बिग अचीवमेंट ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। सो आई वांट टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दिस पैराग्राफ, इन दिस बॉक्स you have to read about the women in the freedom struggle. अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका, इनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि वुमेन्स फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट। इन ब्रीफ आई एम टेलिंग अबाउट दिस पैरा। यंग ओल्ड सिंगल मैरिज जो भी थे, सब ने इनमें कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि वुमेन्स दे वर वर्किंग फॉर देयर ओन फ्रीडम ऑल्सो, क्योंकि इक्वल राइट नहीं थे हमारे इंडिया में। सो दे वांटेड द इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन ऑल्सो। सो दे कम एंड जॉइन डिफरेंट प्रोफेशंस, दे कम एंड पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स। सो दे हैव गिवन द एग्जाम्पल। अंबाबाई कर्नाटका से थी, और इस लेडी की मैरिज कितनी एज में हो गई थी, 12 ईयर्स में, और इनकी जो विडो हो गई थी 16 ईयर्स में। तो देखो इसके लिए पूरी लाइफ आगे थी, बट शी कंट्रीब्यूटेड हरसेल्फ टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। पूरी लाइफ इसने लगा दी नेशनल मूवमेंट के लिए, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दोज डेज। शी रोट इन देयर ओन ऑटोबायोग्राफी कि दीज वर माई बेस्ट डेज, हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, बिकॉज आई हैव सम न्यू पर्पस एंड द कमिटमेंट टूवर्ड्स द नेशन। तो उसने बहुत स्पीचेस दिए हैं, बहुत बार लड़ी, बहुत बार जेल गई, प्रभात फेरी स्टार्ट की। तो शी हैज़ डन अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। So we have seen, so different women have also given their contribution in the freedom struggle as well as the tribal groups. I hope you understood till here and enjoyed the chapter till now.